Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Losit Government Rule Guru Let's Compete. Today, I will discuss part 2 of measurement and evaluation. In this part, I will discuss arithmetic mean and its properties. In this part also, I will discuss 10 MCQs. So before standard scores like T score, Z score, arithmetic mean and standard deviation both are required. So you must have complete knowledge on arithmetic mean and then standard deviation. So in the next class also I will discuss standard deviation. So this part is very important one in measures of central tendency. Arithmetic mean is the best average in comparison to the median and mode. So mathematical properties are there, combined mean is there, so definitely the session would be interesting one. And 10 also MCQs, very interesting one with proper calculation I will discuss. So it is part 2 related to the measurement and evaluation. Just you wait, in subsequent time I bring complete information related to the measurement and evaluation. So my friends, please subscribe my channel Osit Government Rule Guru Let's Compete. Please subscribe my channel, like my channel, share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. If you see my video, do not forget to click on the subscribe button. So you see, it is my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number. It is 8327782034. Okay, if any queries there, you contact with me and clear your doubt. So you see, first I will discuss about arithmetic mean. Okay, you see the formula. So what is mean? What is arithmetic mean? It is the average of a set of numbers. It means formula sum of the observations divided by number of observations. It is mean formula, bar over x, sigma x by n. Sigma x is sum of the observations divided by number of observations. Okay, so here where x bar, it is arithmetic mean, sigma x, it is sum of the all individual observations given in the data. Okay, first observation x1, second observation x2, so up to nth observation. N is total number of observations. So formula, mean formula, sigma x, sum of the observations divided by number of observations. Okay, one example you see, it is simple on grouped data. A student scores the following marks in 5 subjects out of 100. एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट्स का मार्क दे दिया गया है. ओके, आउट ऑफ 100 मार्क्स. फर्स्ट सब्जेक्ट ही गॉट 65, सेकंड सब्जेक्ट 70, थर्ड सब्जेक्ट 80, फोर्थ वन 85, फिफ्थ वन 90. सो हम उसका एवरेज स्कोर निकालेंगे. ठीक है, एवरेज स्कोर हम निकालेंगे. 5 सब्जेक्ट का हम एवरेज स्कोर निकालेंगे. तो फर्स्ट सम ऑफ द मार्क्स को कैलकुलेट कर दो, सिग्मा एक्स. एक सम ले लिया, जो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है वो x है. ठीक है, तो सम ऑफ द वैल्यूज निकाल दो, सम ऑफ द मार्क्स. ओके, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द मार्क्स 390. सो इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स एक्चुअली he has given examination? It is 5. n is equal to 5. Total number of observations, here total number of observations means in how many subjects, in how many subjects actually he has given examination. So number of subjects, n is number of subjects. Sigma x is sum of the marks in 5 subjects. So mean mark, it is sigma x by n, sum of the marks in 5 subjects divided by number of subjects. It is sigma x by n. Formula is sum of the observations divided by number of observations. Here number of observations means number of subject. Sum of the observations means sigma x, it is sum of the 5 subject marks. So his average, okay, mark is 78. Okay, in 5 subjects his average mark is 78. It is ungrouped data, simple ungrouped data. सपोज ग्रुप्ड डाटा के ऊपर एक आप देख लीजिए, डिस्क्रीट
frequency distribution, grouped data, when data points repeat with specific frequencies. इसके ऊपर भी एग्जाम्पल है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, योर मेन फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, दिस फॉर्मूला यू रिमेंबर, ओके। उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इट इज 10, सिग्मा एफ मीन्स इट इज n, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अच्छा, डेली वेजेस 400, एक्चुअली 2 वर्कर्स को मिल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिसीव्ड 400 रुपीज वेज, सो एफ मीन्स हाउ मेनी वर्कर्स, okay, number of workers, it is f, okay, so how many workers received daily wage rupees 400? 2 workers, so daily wage symbol is x, so you calculate fx, okay. If 2 workers, actually your number of workers 2, each receive 400, so total 2 workers received daily wage 800 fx. Similarly, 5 number of workers, okay, daily wage is 500, okay. Another group, it is the first group, 2 or it is the first group, okay, each one getting 400 rupees daily wage. Another second group, 5 workers, okay, each one getting 500, so here number of workers 5, daily wage 500, so fx calculate. Similarly, another 3 number of workers, their daily wage is 600, okay, so fx calculate, so sigma fx डिवाइड सिग्मा, सिग्मा एफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, याद रखिए, एन यहां पर मैं लिख दिया, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए कैलकुलेशन, सिग्मा मीन वेज आप निकाल दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सो एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, तो एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये ग्रुप्ड डाटा, ओके। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, एक एक्सक्लूसिव सीरीज दिया है, क्लास इंटरवल फॉर्म, एक्सक्लूसिव सीरीज, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज मैं सेपरेटली इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, मगर एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, यहां पर मार्क्स क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10 2, इट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 10 मार्क। यहां पर अपर लिमिट जो है 10 उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंटरवल 10 to 20 मीन्स मार्क 10 एंड लेस देन 20, सो हियर एक्चुअली 0 to 10 हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 0 मार्क एंड लेस देन 10, 0 मार्क एंड लेस देन 10, 2 students. How many students got 10 marks and less than 20? 10 marks देखिए equal to 10 but less than 20. Okay, how many? 3 students, frequency is 3. Similarly, third class interval, how many students got 20 marks and less than 30? 5 students. Fourth interval, how many students got 30 marks but less than 40? 6 students. How many students got 40 marks but less than 50? 4 students. So your upper limit is not considered because the exclusive series, याद रखिए, you see upper limit is equal to lower limit of the subsequent class interval. देखिए 2 class interval 0 to 10, next one 10 to 20. Here you see upper limit of the first class interval, equal to lower limit of the second class interval. Similarly, upper limit of the second class interval equal to lower limit of the first class interval. So it is exclusive form. So in exclusive series, when you calculate frequency, upper limit is not included because 0 to 10, 0 but less than 10. The second class interval 10 but less than 20. So here 0 to 10 means 10 mark is not included. 10 mark is included in second class interval. It is how many students got 10 marks but less than 20, like this. So exclusive series, upper limit is equal to subsequent upper limit is equal to lower limit of the subsequent class interval. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको मीन कैसे आप निकालोगे, तो यहां पर आपको मिड वैल्यू, मिड मार्क निकालना है। तो आप देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व कर दिया, यहां पर फर्स्ट मिड मार्क्स निकालिए। ये तो मार्क्स क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी दे दिया
अच्छा, मिड पॉइंट एक्स, मिड पॉइंट मीन्स मिड मार्क। तो मिड मार्क कैसे ना, ईच क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये है मिड वैल्यू फॉर्मूला। ईच क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, इट इज मिड वैल्यू फॉर्मूला। क्लियर भाई? सेम थिंग आई हैव रिटन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। एवरी क्लास इंटरवल का आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो यहां पर देखिए दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सपोज फर्स्ट वन यू सी 0 प्लस 10 by 2, इट इज 5। सिमिलरली 10 प्लस 20 30 by 2 15, 20 प्लस 30 50 by 2 25, 30 to 40 70 by 2 35, 40 plus 50 90 divided by 2 45. So you calculate here mid mark. Suppose mid mark it is small x और small m भी ले सकते हो, it is frequency, it is mid mark, it is small x, then calculate fx. तो then formula sigma f x divided by sigma f. Sigma f means total number of, sigma f is equal to n is equal to sigma f. It is total number of, suppose students marks, your total number of students 20. Okay, it's small x, otherwise suppose mid value also you consider this, it is small m symbol, small m. So it is, you calculate fm, so sigma fm divided by sigma f is equal to n, how many students, total number of students. क्लियर? सो इसमें मिड वैल्यू निकल कर आपको निकालना है। आप यहां पर देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सो एवरेज मार्क इज 28.5। तो यहां पर आपको मिड वैल्यू निकालना है क्लास इंटरवल फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज। अराउंड 6 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा, की प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सम ऑफ द डेविएशंस इज 0। अच्छा, डेविएशन इट इज, यू सी द सम ऑफ differences of individual items from their arithmetic mean is always 0. each observation, it is each observation minus mean. एक ऑब्जर्वेशन, एक कंप्लीट सेट ऑफ मार्क्स दिया है, आप उसका मीन निकाल दीजिए। तो ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, डेविएशन मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, तो उसका सिग्मा सम निकाल दीजिए, इट इक्वल टू 0। तो इट इज sum of the deviations of the mean, okay, from each observation is equal to 0. How to read it actually? It is sum, sigma means sum, it is sum of the deviation of mean from each observation, it is equal to 0. इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो sum of the differences of individual items from their arithmetic mean is always 0. So you see here raw scores given, here raw scores given, it is x 10 15 20 25 30, तो सिग्मा x निकाल दीजिए, ठीक है। टोटल स्कोर आप निकाल दीजिए सिग्मा x। अच्छा, यहां पर आप मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन 20 है, क्योंकि हाउ मेनी रॉ स्कोर्स गिवन, 5 गिवन। so how to calculate mean is equal to sum of the score divided by n. n means how many raw scores, it is 100 by 5. how many raw scores given, 1 2 3 4 5 ना, so it is mean score is 20, mean is 20 or not, तो mean is 20, तो आप डेविएशन निकाल दो। यहां पर डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके, डेविएशन फ्रॉम मीन x, डिफरेंस इसका निकालो 10 minus 20, इसका डेविएशन निकाल दो, क्योंकि हमको निकालना है x ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, यही है डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, 10 minus 20 minus 10, 15 minus 20 minus 5, 20 minus 20 0, 25 minus 25, 30 minus 20 10. So it is deviation of the observations from mean, आप निकाल दीजिए। फिर आप निकाल दीजिए इसका सम निकाल दीजिए, इसका सम निकाल दीजिए, जो डेविएशन का सम निकाल दीजिए, 0 होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जो सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ईच
स्कोर ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। आप एक रॉ स्कोर्स दे दिया, उसका मीन निकाल दीजिए, ठीक है, और ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन निकालिए। ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, वही है डेविएशन, यही है डेविएशन। ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन मीन्स इट इज डेविएशन, इट इज डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका सम निकाल दीजिए, सिग्मा सम निकाल दीजिए, सम 0 होगा। तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन, ओके, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस इन मिनिमल is minimal, sum of square deviations is minimal. It means second property you see, the sum of square deviations of observations is at a minimum when taken from the arithmetic mean rather than any other arbitrary value a. यहां पर देखिए आप इसका डेविएशन निकाल दीजिए, डेविएशन फ्रॉम मीन ईच ऑब्जर्वेशन, देखिए ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन निकाल दीजिए, यही है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, इट इज डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन फर्स्ट देखिए इसको जब आप निकालेंगे यहां पर देखिए मैं एक टेबल बता देता हूं, ये ऑब्जर्वेशन है, फिर उसका मीन निकाल दीजिए, फिर डेविएशंस निकालिए, ठीक है, ये डेविएशन है, फिर डेविएशन का इसका डेविएशन का स्क्वायर निकाल दीजिए, इसी का सम निकाल दीजिए, ये जो आएगा इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस निकाल दीजिए, ये मिनिमम होगा, ये ऑलवेज मिनिमम होगा, ठीक है, क्लियर। तो द सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज एट ए मिनिमम when taken from arithmetic mean, जो डेविएशन हम निकालेंगे एरिथमेटिक मीन से निकालेंगे rather than any other arbitrary value a, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल में, आप देख लीजिए यहां पर ऑब्जर्वेशंस गिवन, हियर ऑब्जर्वेशंस गिवन, हियर ऑब्जर्वेशंस गिवन 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहां पर आप डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको मीन निकाल दीजिए, ये सम हो जाएगा 18 24 to 30, तो ये 30 है, ठीक है। यहां पर मीन निकाल दीजिए, मीन इज 6 बिकॉज सिग्मा x बाय n, n मीन्स हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस गिवन, 1 2 1 2 3 4 5, सो 30 by 5 इट इज 6, सो मीन इज 6। डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल दीजिए, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिए, डेविएशन फ्रॉम मीन टू ये ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, तो क्लियर, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन निकाल दीजिए, यही है एक्स माइनस ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ओके, यही है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, स्क्वायर मीन्स जो हम डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम है, इस ए कॉलम ए स्क्वायर है, ओके, होल इंटू 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है, -4 यहां पर स्क्वायर, इसका स्क्वायर -4 6, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -4, स्क्वायर ऑफ -2, स्क्वायर ऑफ 0, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, ओके। सपोज एनी अदर आप एक आर्बिट्ररी टर्म ले जाइए, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस आर्बिट्ररी टर्म ले जाइए, डेविएशन फ्रॉम एक एनी आर्बिट्ररी नंबर, सपोज यहां पर नंबर 4 है और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, ये डेविएशन है, इसका स्क्वायर निकालिए, ओके। ऑलवेज याद रखना, जो यहां पर देखिए यहां पर 60 आ रहा है, यदि हम डेविएशन ले रहे हैं आर्बिट्ररी नंबर से, यदि डेविएशन ले रहे हैं आर्बिट्ररी नंबर से तो उसका स्क्वायर ज्यादा होगा, यदि हम डेविएशन ले रहे हैं मीन से उसका स्क्वायर लिस्ट होगा। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है याद रखिए, ठीक है, इट इज इक्वल टू मिनिमम, तो इट मीन्स हाउ टू रीड इट, इट इज द डेविएशन फ्रॉम मीन, x माइनस बार ओवर x मीन्स इट इज मीन, बार ओवर x मीन्स मीन, सो डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए और सम निकाल दीजिए, सो इसको हाउ टू रीड ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, सम ऑफ द
स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। यदि मीन के जगह में आप कोई भी आर्बिट्ररी नंबर ले लो, डेविएशन निकालो, ठीक है, मीन के जगह में कोई भी आर्बिट्ररी नंबर लेके आप डेविएशन निकाल दो, उसका स्क्वायर लेके आप सम निकाल दो, वो ज्यादा होगा। मगर जब हम डेविएशन निकालेंगे मीन से और उसका स्क्वायर और उसका सम हम निकालेंगे, वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबाइंड मीन है। ग्रुप दिया है, देखिए टू ग्रुप्स, एक ग्रुप में दिया है टू ग्रुप्स ऑफ साइजेस दिया है। फर्स्ट ग्रुप का साइज है ऑब्जर्वेशन से n1, सेकेंड ग्रुप का साइज है n2, माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों ग्रुप का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, ओके। फर्स्ट ग्रुप का एरिथमेटिक मीन, सेकेंड ग्रुप का एरिथमेटिक मीन, हम कंबाइन, ये कंबाइंड एक्चुअली मीन का फॉर्मूला, टू ग्रुप्स का अलग अलग दिया है। इसमें जैसे देखिए मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई, सपोज ग्रुप वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 है और उसका मीन जो दिया है, देखिए ग्रुप वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 है, उसका मीन है, एवरेज है। और ग्रुप टू का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2 है और उसका मीन है 12/x2, ओके। ये नंबर ग्रुप वन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज ग्रुप वन एक स्टूडेंट आप ले जाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज एवरेज मार्क। ग्रुप टू अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ले जाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर एवरेज मार्क। तो इस केस में आप कंबाइंड मीन निकालेंगे। यहां पर दो ग्रुप है, ग्रुप वन ग्रुप टू। ग्रुप वन में कितना स्टूडेंट्स है n1 और मीन क्या है 12/x1, और ग्रुप टू में हाउ मेनी स्टूडेंट्स n2 एंड एवरेज मार्क क्या है 12/x2। तो उसमें कंबाइंड हम कैसे, दोनों ग्रुप का कंबाइंड मार्क हम कैसे निकालेंगे, वो n1 12/x1 प्लस n2 12/x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और सिंबॉलिकली 12/x12, माने 1 मीन्स फर्स्ट ग्रुप, 2 मीन्स सेकेंड ग्रुप। यहां पर एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है और मीन मार्क है 60। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें कितना स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स है, उनका मीन मार्क, उनका जो एवरेज मार्क निकालेंगे फर्स्ट ग्रुप का 60 है, तो उसका सिंबल 12/x1। अच्छा ग्रुप बी में कितना स्टूडेंट्स है n2 15 स्टूडेंट्स है, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, ओके। और उनका जो एवरेज स्कोर है सेकेंड ग्रुप का 80 है और उसका सिंबल 12/x2। तो कंबाइंड मीन फॉर्मूला, ये कंबाइंड मीन फॉर्मूला जो है 12/x12, इट मींस 1 फर्स्ट ग्रुप 2 सेकेंड ग्रुप। ये दो ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप का, एक ग्रुप का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन मार्क, सेकेंड ग्रुप का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन मार्क अलग अलग है, तो दोनों ग्रुप का कंबाइंड करके हम एवरेज स्कोर निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, ओके। फर्स्ट ग्रुप के लिए आप जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप जब जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप n1 इंटू 12/x1 प्लस n1 क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और 12/x1 क्या है, इट इज द एवरेज मार्क ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। अच्छा सेकेंड ग्रुप को आइए, सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है n2 और सेकेंड ग्रुप का एवरेज स्कोर क्या है 12/x2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में n1 स्टूडेंट्स है, सेकेंड ग्रुप में n2 स्टूडेंट्स है। अच्छा दोनों ग्रुप का हम कंबाइंड जो निकालेंगे उसका सिंबल है 12/x12, ठीक है, क्लियर। तो उसके हिसाब से यहां पर एक एग्जांपल दिया है, आप देखिए यहां पर जो एग्जांपल दिया है इट इज, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप का एवरेज स्कोर। सेकेंड ग्रुप में आइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय फर्स्ट ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है, सेकेंड ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है, n1 प्लस n2। ऐसे करके हम जो दोनों ग्रुप का कंबाइंड हम निकालेंगे, कंबाइंड स्कोर जो है, कंबाइंड एवरेज स्कोर 72 है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये कंबाइंड, सपोज दो ग्रुप दिया है, दो ग्रुप का अलग अलग दिया है, दो ग्रुप का, एक ग्रुप का ऑब्जर्वेशंस दिया है, एवरेज दिया है, सेकेंड ग्रुप का ऑब्जर्वेशंस दिया है, एवरेज दिया है,
तो हम दोनों ग्रुप का कंबाइंड हम एवरेज निकालेंगे। तो कंबाइंड जो निकालेंगे, कंबाइंड का ये फॉर्मूला है बार ओवर x12। तो फॉर्मूला ये है, इसको कैसे याद रखना है, फास्ट ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है और फास्ट ग्रुप का एवरेज मार्क। सेकेंड ग्रुप को आइए, सेकेंड ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है और सेकेंड ग्रुप का एवरेज मार्क डिवाइडेड बाय ओके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकेंड ग्रुप करके ऐसे कंबाइंड हम दोनों ग्रुप का कंबाइंड एवरेज स्कोर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन एक है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में आप बहुत इजी है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जैसे आप मीन का फॉर्मूला जानते हो कि इसमें मीन का फॉर्मूला, ठीक है, आप मीन का फॉर्मूला जो है इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। अच्छा, प्रोडक्ट कर दो मीन इंटू ऑब्जर्वेशन, हम कर देंगे कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट इज इक्वल टू मीन एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा। यहां पर देखिए, और एक बार बता देता हूं, ये जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन। सपोज हम निकालेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, हाउ कैन यू फाइंड ना, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक एग्जांपल भी दिया है, यहां पर एक एग्जांपल भी दिया है, आप देखिए, ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स हैज ए मीन टेस्ट स्कोर ऑफ 75। अच्छा, यहां पर एक्चुअली मीन स्कोर जो है, मीन स्कोर 75 है, थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए मीन स्कोर जो है, मीन स्कोर 75 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या एन दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 20 है, मीन स्कोर दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, मीन मार्क दे दिया, एवरेज मार्क दे दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू फाइंड मीन एवरेज स्कोर ओके इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। So ये सिग्मा एक्स मीन्स हाउ टू रीड, इट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिफ्थ को चलिए चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज मीन दिया है कि एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा। सपोज एक सीरीज में आपका ऐसे दिया है, ये है सीरीज, ठीक है। अच्छा, यहां पर मीन निकाल दीजिए, ओरिजिनल मीन, ये ओरिजिनल मीन है, OM कर दिया, ये ओरिजिनल मीन कितना है 8 कर दीजिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 12 बाय 4, अच्छा मीन कितना है 3 है, ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है ना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना है 12 है, तो ये ओरिजिनल मीन है। अच्छा, ईच ऑब्जर्वेशन में अभी 2 ऐड कर दीजिए, ईच ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, 4 हो गया, 5 7 4, ईच ऑब्जर्वेशन में आप 2 ऐड कर दीजिए। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा ना, जो ओरिजिनल मीन है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन हो जाएगा 5, ओरिजिनल मीन में आप 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन में आप कितना ऐड किया, ईच ऑब्जर्वेशन में जितना ऐड कर रहे हो उतना ओरिजिनल मीन में ऐड करने से न्यू मीन मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल यू सी अगेन, चेंज ऑफ ओरिजिन इसको बोलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ऐसे दिया है 5 7 10
2, ठीक है। अच्छा, इसका मीन निकाल दीजिए, इसका मीन कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 24 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है। अच्छा, इसमें आप 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सभी में 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ईच ऑब्जर्वेशन में आप 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 था 3 हो गया, 7 था 5 हो गया, 10 था 8 हो गया, 2 था 0 हो गया। अच्छा, इसका मीन कैसा, इसका मीन कितना होगा, इसका मीन ओरिजिनल मीन माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है कि नहीं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्लियरली चेंज ऑफ ओरिजिन मींस आप ओरिजिनल मीन निकाल दो, ईच ऑब्जर्वेशन में जो आर्बिट्ररी नंबर ऐड होगा, ईच ऑब्जर्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी नंबर ऐड होगा, तो आप न्यू मीन जो निकालेंगे ओरिजिनल मीन में वही आर्बिट्ररी नंबर को ऐड कर दीजिए। जैसे सब्ट्रैक्शन, यहां पर सब्ट्रैक्शन में मैं किया, ऑब्जर्वेशंस दे दिया, ओरिजिनल मीन आप निकाल दिया, ईच ऑब्जर्वेशन से आप 2 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ईच ऑब्जर्वेशन से आप 2 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप निकाल दो ऑब्जर्वेशन, तो न्यू मीन निकालो। न्यू मीन क्या होगा, ओरिजिनल मीन माइनस जो आप आर्बिट्ररी नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इसमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 2, तो 4 हो जाएगा। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन और चेंज ऑफ स्केल मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वही है। सपोज इसमें एक एग्जांपल चेंज ऑफ स्केल में, सपोज ये दे दिया 5 7 8 और 4, इसका मीन निकाल दो, इसका मीन है 6, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इसमें ईच ऑब्जर्वेशन में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, ईच ऑब्जर्वेशन में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, ईच ऑब्जर्वेशन में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये हो गया 15 21, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 24 12, इसका मीन निकाल दो। इसको आप डायरेक्टली सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये करना जरूरत नहीं है, आप यहां पर क्या करो ना, जो ओरिजिनल मीन था, ओरिजिनल मीन में 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ओरिजिनल मीन में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको न्यू मीन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। और डिवीजन में वही है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन मींस जो भी आप ईच ऑब्जर्वेशन में जो आप आर्बिट्ररी नंबर आप ऐड करोगे, तो न्यू मीन में ओल्ड मीन प्लस वो आर्बिट्ररी नंबर, ठीक है, ये एडिशन केस में, ठीक है। यदि सब्ट्रैक्शन केस में क्या होगा ना, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन माइनस जो आर्बिट्ररी नंबर आप ईच ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया, क्लियर, जो ईच ऑब्जर्वेशन से आप जो आर्बिट्ररी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसको न्यू मीन आप निकालेंगे, ओरिजिनल मीन माइनस आर्बिट्ररी नंबर। सो सिमिलरली चेंज ऑफ स्केल किसको बोलेंगे, चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। न्यू मीन इज इक्वल टू, सपोज आप यहां पर जो आर्बिट्ररी नंबर मल्टीप्लाई किया ए, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय द आर्बिट्ररी नंबर, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय द आर्बिट्ररी नंबर, ताहले न्यू मीन क्या होगा ना, ओरिजिनल मीन क्या होगा ना, ओरिजिनल मीन इनटू जो आर्बिट्ररी नंबर ईच ऑब्जर्वेशन में आप मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ही डिवीजन केस में, तो चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चेंज ऑफ ओरिजिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे दिया है, देखिए एक चेंज ऑफ, ये फर्स्ट वन चेंज ऑफ ओरिजिन, डाटा सीट ये दे दिया ऑब्जर्वेशंस, ओरिजिनल मीन निकाल दिया। अच्छा, ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन शिफ्ट होगा, ईच ऑब्जर्वेशन में आप 5 ऐड कर दो, ईच ऑब्जर्वेशन में 2 था 7 हो गया, 4 था 9 हो गया, तो ईच ऑब्जर्वेशन में आप 5 ऐड कर दो। अच्छा, न्यू मीन क्या होगा ना, ओरिजिनल मीन प्लस जो आर्बिट्ररी नंबर आप ऐड किया ईच ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और स्केल में देखिए, स्केल में क्या आता है, ओरिजिन में, चेंज ऑफ ओरिजिन में एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, स्केल में यहां पर मल्टीप्लाई क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 10 3 जा 30। अच्छा, उसका मीन निकालो, न्यू मीन आप क्या करेंगे ना, ओरिजिनल मीन इंटू जो आर्बिट्ररी नंबर ईच ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई किया, तो निकाल दो आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, देखिए एक ओरिजिनल डाटा शीट दिया है। ओरिजिनल डाटा शीट में आपको क्लियरली मेंशन है 20,000, सपोज ये मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज दिया है, मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज दे दिया, 20, 25, 28, 30, 32, ये 5 एम्प्लॉइज का ओरिजिनल जो मंथली सैलरी है। तो मीन निकल दो 27,000, तो बहुत क्लैरिटी है। मगर इसमें क्या है, एक अपडेटेड डाटा शीट दे दिया, जो फर्स्ट का सैलरी 20,000 है, सेकेंड एम्प्लॉय 25,000, थर्ड एम्प्लॉय 28,000, फोर्थ एम्प्लॉय 30,000, देन सपोज 32,000, लास्ट वन 50 लाख, माने बहुत लार्ज है। एक्सट्रीम मींस क्या है, जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें एक आइटम होगा बहुत बड़ा होगा और एक आइटम होगा बहुत छोटा होगा, तो वो एवरेज को अफेक्ट करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस वही है, माने जो ऑब्जर्वेशन से है उसमें एक आइटम होगा बहुत, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और जो ऑब्जर्वेशन से उसमें एक सपोज आइटम होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। यहां पर देखिए ना 50 लाख अदर एम्प्लॉइज का सैलरी 20, 25, 28, 30, 32, मगर एक का 50 लाख, तो उसमें हम मीन निकालेंगे तो 8,55,000 थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि इसमें 5 एम्प्लॉइज का देखिए 20, 25, 28, 30, 32 ऐसे के में है, 1000 में, मगर एक का 50 लाख में है, तो एवरेज देखिए, एवरेज सैलरी। मगर फास्ट में देखिए, ओरिजिनल केस में देखिए, ओरिजिनल में 20 के, 25 के, 28 के, 30 के, 32 के, और एवरेज वही है, एवरेज लगभग आसपास में है। मगर इसमें एक देखिए बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं वही बताया, एक्सट्रीम मींस एक आइटम जो सेट में ऑब्जर्वेशन से, सेट में ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो वो मीन को अफेक्ट करेगा। और एक सेट है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस, तो उसमें मीन अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस जो वन ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज मच मोर इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस, कि वन ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज मच लेस इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस, इस केस में मीन अफेक्ट होता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस देखेंगे। 10 MCQs. What is the value of the sum of the algebraic deviations of a set of observations taken from their arithmetic mean? मैं बताया था एक प्रॉपर्टी ये है, deviations from mean it is always equal to 0. सम ऑफ द, आप मीन निकाल दीजिए, एक डाटा दिया है उसका मीन निकाल दीजिए, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और उसका सिग्मा सम निकाल दीजिए, वो 0 होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डेविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इक्वल टू 0। हाउ टू रीड इट, सम ऑफ द, ये अच्छा डेविएशन मींस यही है, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, यही है डेविएशन, कंफ्यूज, यही है डेविएशन, इसको निकाल दीजिए। और आप जब निकालेंगे, देखिए ये ऑब्जर्वेशन से, ये सब ऑब्जर्वेशंस दिया है, आप अभी मीन निकाल दीजिए, मीन निकालने के बाद डेविएशंस निकालिए, आप डेविएशंस निकालिए, ये सब डेविएशंस, ईच ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और इसका सम निकाल दीजिए, इसका सम निकाल दीजिए, सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द एरिथमेटिक मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, if every observation in a data set is increased by 15, each observation increased by 15, it is change of origin, how does the arithmetic mean change? Each observation increased by 15, how does the arithmetic mean change? It is also new arithmetic mean, new mean also increased by 15, it is option A is the correct answer। ये जो increase मैं बोला था, add subtract change of origin, multiply division चेंज ऑफ स्केल, तो अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? इसमें आप आंख बंद करके निकाल दीजिए, सपोज ये सीरीज है, 2 है, 5 है, 7 है, और इसमें 6 है, इसमें मीन निकाल दीजिए, इसका 5 है मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है, मीन हो गया 5,
इसमें ईच ऑब्जर्वेशन में आप 15 ऐड कर दीजिए, 17 15 ऐड कर दीजिए, 20 15 ऐड कर दीजिए, 22 15 ऐड कर दीजिए, 21, इसका आप न्यू मीन निकालिए। तो यहां पर न्यू मीन क्या होगा ना, ओरिजिनल मीन प्लस जो आर्बिट्ररी नंबर ऐड हुआ ईच ऑब्जर्वेशन में प्लस 15। तो इट मींस न्यू मीन ओके, द अरिथमेटिक मीन जो चेंज होगा, अरिथमेटिक मीन जो चेंज होगा, कितना चेंज होगा ना, इट इज इंक्रीज बाय 15। यही है चेंज ऑफ ओरिजिन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी में बता चुका हूं ऑलरेडी। कोई भी आर्बिट्ररी नंबर आप ऐड कीजिए कि कोई भी आर्बिट्ररी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, तो जो न्यू अरिथमेटिक मीन मिलेगा, तो ऑब्वियसली इट इज इंक्रीज बाय द आर्बिट्ररी नंबर और डिक्रीज बाय द आर्बिट्ररी नंबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द स्क्वायर, इसको मैं बोला था सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम व्हिच वैल्यू। एक प्रॉपर्टी था, ये बोला था आप डेविएशन निकाल दीजिए, ये डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। सम ऑफ द, ये सेकंड प्रॉपर्टी था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। तो यहां पर जो मिनिमम दिया है, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम व्हिच वैल्यू ना, फ्रॉम द मीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी में बोल चुका हूं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ए डाटा शीट ऑफ 20 आइटम्स हैज ए मीन, 20 आइटम्स का मीन दिया है। इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हाट इज द न्यू मीन। 20 आइटम्स दिया है, मीन दिया है 50, 20 आइटम्स का मीन दिया है 50, ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 3, तो न्यू मीन डेफिनेटली ये, और यहां पर ओरिजिनल मीन कितना है, ओरिजिनल मीन 50 है, आइटम 20 आइटम्स है, वो बोल रहा है ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 3, चेंज ऑफ स्केल में बताया था, यदि ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 3 तो न्यू मीन कितना होगा, न्यू मीन कितना होगा ना, ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट इज इक्वल टू 150। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखिए, यदि कोई भी आर्बिट्ररी नंबर को ईच ऑब्जर्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो न्यू मीन होगा ओरिजिनल मीन में वो आर्बिट्ररी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल मीन में वो आर्बिट्ररी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जिस आर्बिट्ररी नंबर को आप ईच ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई किया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मैं बताया था एक्सट्रीम वैल्यूज, एक ऑब्जर्वेशन होगा उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, नहीं तो एक ऑब्जर्वेशन होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस। इस केस में मीन ज्यादातर अफेक्ट होता है, एरिथमेटिक मीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी मैं बोल चुका हूं प्रॉपर्टी में, ऑलवेज मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस जो ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस, कि एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशंस, इन दिस केस मीन इज अफेक्टेड। ओके, मीन इज सीवियरली अफेक्टेड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप ए हैज 10 आइटम्स विथ ए मीन ऑफ 40 एंड ग्रुप बी हैज 20 आइटम्स विथ ए मीन ऑफ 70। तो कंबाइंड मीन निकालेंगे। कंबाइंड मीन में आप ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, n इज इक्वल टू 10। अच्छा, मीन में ये ले लिया बार ओवर x1, ये 40। ग्रुप 1 का नंबर ऑफ आइटम्स n और मीन 40। अच्छा, आप ग्रुप 2 में जाइए, ग्रुप 2 में नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 20 है और उसका मीन कितना है बार ओवर x2 ले जाइए, कितना है 70 है। ठीक है, तो आप कंबाइंड मीन निकालिए 20 ऑल 30 आइटम्स का, क्योंकि ग्रुप 1 में 10 आइटम्स है, ग्रुप 2 में 20 आइटम्स है। ग्रुप 1 का मीन दिया है, ग्रुप 2 का मीन दिया है, तो यहां पर आप कंबाइंड मीन निकालिए। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला में बताया था, फर्स्ट ग्रुप का आप देखिए जो n बार ओवर x1 प्लस
इट इज N1, इसको N1 ले जाइए, इसको N2 ले जाइए। ग्रुप 1 का जो आइटम्स है N1 उसका मीन बार/x1, ग्रुप 2 का जो आइटम्स N2 और उसका जो मीन है बार/x2। तो उसमें आराम से फॉर्मूला डाल दीजिए, इट इज फर्स्ट ग्रुप का आइटम्स और फर्स्ट ग्रुप का मीन, फर्स्ट ग्रुप का आइटम्स इनटू फर्स्ट ग्रुप का मीन प्लस सेकेंड ग्रुप का, आइए सेकेंड ग्रुप का नंबर ऑफ आइटम्स इनटू सेकेंड ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय ओके फर्स्ट ग्रुप का आइटम्स सेकेंड ग्रुप का आइटम्स, निकाल दीजिए। तो ये एक्चुअली जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बार/x12, अभी निकाल दीजिए। तो अच्छा फॉर्मूला तो क्लियर हो गए, आप अभी निकालिए 10 × 40 प्लस 20 × 70, टोटल आइटम्स कितना है दोनों ग्रुप में 30। तो उसमें हो गया, ये हो गया 400 प्लस 1400 बाय 30, अच्छा 1800 बाय 30, 1800 बाय 30, तो ये 60 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये होगा कंबाइंड मीन ऑफ ऑल 30 आइटम्स। तो ये जो ये N1 है, N1 10, ओके फर्स्ट ये N1 है, फर्स्ट ग्रुप का आइटम्स 40 है, फर्स्ट ग्रुप का मीन 20 जो है सेकेंड ग्रुप का आइटम N2, 70 जो है वो सेकेंड ग्रुप का मीन और डिवाइड बाय N1 प्लस N2, फर्स्ट ग्रुप का कितना आइटम्स है, सेकेंड ग्रुप का कितना आइटम्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 and 9, find the corrected mean। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7, अच्छा later on it was found that 2 observations 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 and 9, find the corrected mean। अच्छा यहां पर देखिए, ये जो फास्ट आप निकालेंगे रॉन्ग सिग्मा x निकाल दीजिए, इट इज इक्वल टू 5 × 7, इट इज इक्वल टू 35, इट मीन्स 5 ऑब्जर्वेशंस मीन 7, ओके। तो रॉन्ग सिग्मा x इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, क्योंकि आप जानते हो एक फॉर्मूला में बता देता हूं आपको, जो मीन का फॉर्मूला है बार/x इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज मीन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे ना, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही है ना। अच्छा इसमें जो इस क्वेश्चन में दिया है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7 दिया है, किंतु लेटर ऑन हम बाद में देखा कि इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5। हमको 5 and 9 लेना था मगर हम ले लिया 4 and 8। तो करेक्टेड मीन क्या होगा, फर्स्ट आप देखिए रॉन्ग सिग्मा x निकालिए, यहां पर ये रॉन्ग है, रॉन्ग सिग्मा x इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज 35। अच्छा आप करेक्ट सिग्मा x अभी निकालिए, करेक्ट सिग्मा x सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्या होगा ना 35, इसमें हम रॉन्गली लेना था 5 9 मगर ले लिए 4 8, तो जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हम ले लिए उसको ऐड कर दो -12। अच्छा जो करेक्ट है 5 and 9 कितना है 14, ठीक है। तो करेक्ट सिग्मा x कितना हो गया 37। अच्छा 37 डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली क्या है 5 है, तो अभी आप निकाल दीजिए करेक्ट सिग्मा x, करेक्ट सिग्मा x बाय n निकाल दीजिए, 37 बाय 5 निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी का आप देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन समझ में आया, तो इसमें आप फर्स्ट मीन निकाल दो, मीन कितना हो रहा है 38, इसमें मीन दिया है, देखिए ये मीन है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा आप अभी सिग्मा x निकाल दो, सिग्मा x कितना हो गया 35, मगर ये रॉन्ग है क्योंकि हमको 9 5 लेना था, हम 4 8 ले लिए। तो उसमें आप 35 में जो रॉन्ग था उसको माइनस कर दीजिए, दोनों ऑब्जर्वेशन रॉन्ग था, दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, जो करेक्ट वाला था उसको ऐड कर दीजिए, तो उसमें कितना हो गया 37,
यही है सिग्मा एक्स, एक्चुअली करेक्ट करेक्ट यही है करेक्ट सिग्मा एक्स। ये है रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है। और अभी करेक्ट मीन निकाल दीजिए। करेक्ट मीन क्या है ना, सिग्मा करेक्ट, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 7.4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दे दिया, ए ट्रेन रॉन्स 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अनदर 50 miles at a speed of 40 kilometer per hour, 40 miles per hour. Sorry, a train runs 25 miles at a speed of 30 mile per hour. Another 50 miles at a speed of 40 mile per hour. Then due to repairs of the track, okay, travels for 6 minutes at a speed of 10 mile per hour, and finally covers the remaining distance of 24 miles at a speed of 24 miles per hour. So what is the average speed? इन माइल्स पर आवर में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस दिया है, आप क्वेश्चंस को देख लिए। यहां पर देखिए सॉल्यूशन को, आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम निकालना है, ठीक है। यहां पर देखिए डिस्टेंस 25 माइल्स, स्पीड 30 माइल पर आवर, तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। सो 25 बाय 30, 5 बाय 6 आवर्स में, तब उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो इंटू 60, इसको इंटू 60 कर देने से मिनट्स में आ जाएगा। 5 बाई 6 आवर्स मिनट्स में कन्वर्ट करने में 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, सेकंड में क्या दिया? 50 माइल्स, स्पीड है 40 माइल पर आवर, टाइम निकाल दीजिए, डिस्टेंस बाय स्पीड 50 बाई 40, 5 बाई 4 आवर्स। अच्छा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 बाई 4 इंटू 60, 5 बाई 4 इंटू 60, 75 मिनट्स। अच्छा, नेक्स्ट वन, स्पीड दिया है, ठीक है, स्पीड दिया है, टाइम मिनट्स था, 6 मिनट्स था। देखिए 6 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट कीजिए, क्लियर। जो थर्ड वाला था रिपेयर केस में, स्पीड था 10 माइल्स पर आवर और टाइम दिया था 6 मिनट्स, तो इसको आपको निकलना है, इसको आपको निकलना है, ठीक है। तो 6 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 बाई 60, 1 बाई 10, ठीक है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये दोनों दिया है, ये दोनों दिया है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप अभी आवर्स में कर, ये माइल पर आवर, 1 माइल पर आवर यहां पर डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये मिसिंग है, ये एक्चुअल ये मिसिंग था। ये जो रिपेयर केस में हमारा दिया था, वो जो ट्रेन का स्पीड है 10 माइल पर आवर और वो कवर 6 मिनट्स, क्योंकि रिपेयर हो रहा है ट्रैक, तो उसका स्पीड 10 माइल पर आवर और टाइम 6 मिनट्स। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम को मिनट्स जो है उसको आवर को कन्वर्ट कर दीजिए, 1 बाई 10 करके इसको हम निकाल दिया, 1 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लियरली दिया है 24 माइल्स, स्पीड माइल्स पर आवर कितना है 24 माइल्स पर आवर, तो उसमें 1 आवर और 60 मिनट्स। अच्छा, अभी पूरा डिस्टेंस आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, यदि एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देन हमको क्या करना पड़ेगा ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पर हम टोटल डिस्टेंस देखिए, एक कॉलम में टोटल ये सब टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 माइल्स, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 माइल्स। और यहां पर टाइम देखिए, आप आवर में कर दीजिए, क्योंकि माइल्स पर आवर, तो ये 191 बाई 60 आवर्स, मिनट होगा 191, मगर आवर्स में, सबको आवर्स में रखिए। ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम है, तो अभी आप आराम से निकाल दीजिए डिवाइड करके, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके आप निकाल दीजिए 31.41 मीटर पर आवर, 31.41 मीटर पर आवर। तो इसका ट्रिक क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना, ये सब दिया है, ओनली ये मिसिंग है, यहां पर डिस्टेंस मिसिंग है, यहां पर ये सब मिसिंग है, यहां पर एक्चुअली आपको ये सब निकालना है। देखिए जो राउंड बुला रहा हूं वो मिसिंग है, आपको यहां पर टाइम निकालना है, यहां पर टाइम निकालना है, मगर यहां पर डिस्टेंस निकालना है। ओके, यहां पर आपको टाइम निकालना है, तो आप डिस्टेंस को माइल्स में रखिए, टाइम को आवर्स में रखिए। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कितना हो गया माइल्स,
और टाइम हो गया आवर, माइल्स पर आवर वो निकालने के लिए बोला है, माइल्स पर आवर, डिस्टेंस माइल्स में रहेगा और टाइम आवर में रहेगा, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके आपको निकालना है। जो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 have failed, 50 स्टूडेंट्स से 10 have failed and their average mark is 2.5, टोटल मार्क सिक्योर्ड बाय द एंटायर, ये एंटायर क्लास का टोटल मार्क सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु हैव पास्ड, पास्ड स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क निकालना है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स फेल्ड है, मैं एप कर दिया, कितना स्टूडेंट्स फेल है, 10 है, उनका एवरेज मार्क कितना है 2.5, तो जो फेल्ड स्टूडेंट्स है उनका टोटल मार्क निकालिए, टोटल मार्क ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, टोटल मार्क ऑफ, ये कर दिया एफएस फेल्ड स्टूडेंट, तो कितना स्टूडेंट फेल हो गए 10, एवरेज मार्क उनका 2.5, 10 इंटू 2.5 करके निकाल दीजिए, कितना हो गया 25, तो जो फेल हो गए उनका टोटल मार्क कितना है, फेल स्टूडेंट्स का टोटल मार्क कितना है 25, मगर पूरा होल क्लास का टोटल मार्क कितना है 221। अच्छा, जो पास स्टूडेंट्स है उनका टोटल मार्क निकाल दीजिए, ये पास स्टूडेंट पीएस कर दिया, 281 माइनस 25 कितना हो गया 281 माइनस 25 और निकाल दीजिए, ठीक है, कितना हो गया 256 हो गया, ये पास स्टूडेंट का टोटल मार्क। अच्छा, पास स्टूडेंट का टोटल मार्क, और कितना स्टूडेंट्स पास हो गए 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल 50 स्टूडेंट्स थे, तो अभी आप एवरेज मार्क्स ऑफ हुआ पास्ड, तो एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स मींस जो पास्ड स्टूडेंट्स है उनका टोटल मार्क कितना है 256 डिवाइड बाय पास स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 40 करके आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो 10 इसमें 4 6.4 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है ना, जो फेल स्टूडेंट है उनको कितना मार्क मिला, क्योंकि फेल स्टूडेंट का एवरेज मार्क ये है, और एक साइड में आप फेल कर दीजिए और एक साइड में आप पास कर दीजिए, इसे फेल कितना है 10 स्टूडेंट से एन कर दीजिए और इनका मीन कर दीजिए एवरेज मार्क 2.5, तो इनका टोटल मार्क कितना हो गया 25, एक्चुअली टोटल मार्क कितना था 281, तो 28 पूरा होल क्लास का 281 था। अच्छा, फेल स्टूडेंट्स को कितना मार्क मिला 25, अच्छा पास स्टूडेंट्स को कितना मार्क मिलेगा, पास स्टूडेंट्स को कितना मार्क मिलेगा 256, ये सिग्मा एक्स ये पास स्टूडेंट का टोटल मार्क है। अच्छा, पास स्टूडेंट्स कितना है, पास स्टूडेंट्स हो गए 40, तो अभी आप पास स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क निकाल दीजिए 256 बाई 40, तो इट इज 6.4, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये वही सेम को मैं कैलकुलेट कर दिया, डाटा दिया है देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास। फर्स्ट पास स्टूडेंट्स निकाल दीजिए, पास कितना स्टूडेंट पास हो गए 40, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स फेल हो गए, पास स्टूडेंट्स 40, और यहां पर टोटल फेल्ड मार्क्स, जो 10 स्टूडेंट्स फेल हो गए उनको टोटल मार्क कितना मिला 25, क्योंकि ये एन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल और उनका मीन मार्क। अच्छा, टोटल पास्ट मार्क्स कितना होगा ना, टोटल क्लास का टोटल मार्क 281 और फेल मार्क्स जो 10 स्टूडेंट्स फेल हो गए उनका टोटल मार्क 25, तो जितना स्टूडेंट पास हो गए 40 स्टूडेंट्स पास हो गए उनका टोटल मार्क 256, तो एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स टोटल पास मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, ये तो मैं डिस्कस किया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड टू बी 15, later it was discovered that one observation recorded as 12 was incorrectly copied as 14, माने एक्चुअली 24 है, करेक्ट वन 24 है, मगर उसको हम रॉन्गली ले लिए 14, करेक्ट एरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे। अच्छा, आप फर्स्ट निकाल दीजिए रॉन्ग सिग्मा एक्स, कितना हुआ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड, एरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड टू बी, आप ये कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन, तो 10 इंटू 15 ये रॉन्ग है 150, ये एक्चुअली
जो सम है, जो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन से रॉन्ग है। क्यों? अच्छा, करेक्ट हम कैसे निकालेंगे? सपोज करेक्ट हम कैसे निकालेंगे? करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा ना? रॉन्ग, रॉन्ग में क्यों हुआ? क्योंकि हमको एक को 24 लेना था मगर हम 14 ले लिए। इनकरेक्टली देखिए, लिटरली वन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज 24 वाज इनकरेक्टली कॉपीड एज 14। जो रॉन्ग ले लिए माइनस कर दो, जो करेक्ट ले लिए उसको ऐड कर दो। रॉन्ग को माइनस करो, करेक्ट को ऐड कर दो। तो ऐसे करने के बाद कितना हो गया? एक्चुअली करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 160 है। ओके, करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 160 है। तो अभी आप निकाल दो करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय n, इट इज इक्वल टू 160। करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 10 है। तो ये कितना होगा? 16 होगा। करेक्ट मीन कितना होगा? 16। तो ऑप्शन 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 सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एरिथमेटिक मीन के ऊपर था, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड स्कोर को डिस्कस करना था, जो टी स्कोर है, जेड स्कोर है, मगर इसमें एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो मैं ये सोचा कि ये पार्ट में फर्स्ट एरिथमेटिक मीन को मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम स्टैंडर्ड स्कोर के ऊपर जाएंगे। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट था एरिथमेटिक मीन के ऊपर। सो माय फ्रेंड्स, आप वेट कीजिए, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get quality videos. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।